Greetings of the day, learners. Welcome you all in English class. This is explanation for chapter number 2 of class 10th from book First Flight. The chapter name is Nelson Mandela Long Walk to Freedom. Learners, this Long Walk to Freedom is an autobiography written by Nelson Mandela. As we know that an autobiography is a book or a writing which is written by the writer itself about his or her own life and struggle. So this is a book written by Nelson Mandela in which he has described his lifetime struggle, victories, pain and everything. So Nelson Mandela, he was the first black president of Africa, and he was a politician. He was a leader who struggled against apartheid. Apartheid means a practice of discrimination on the basis of race. He stayed almost 27 years in jail because of his struggle against white rule. Now look his name, Nelson. This letter I'm going to pronounce later on. Mandela. We know him with this name only, Nelson Mandela. Actually, Nelson was his Christian name. Mandela was his surname. So what is his middle name? This is his African name, students. This is his African name. And how we are going to pronounce it? You can see the spelling is starting with R, but the sound will start with K, H, O, L. Whole. E. Holy. Kla Kla. Holy Kla Kla Mandela. So this is right pronunciation of his name, Nelson Holy Kla Kla Mandela. This was a little or brief introduction about him, although he had a great personality. We have lot of things to know about him. Now let's move toward the chapter. Before explaining the chapter, this chapter is a part of his an autobiography in which he has described a particular scene of his life, a particular event of his life, and that was very special moment of his life because after a 27-year struggle, he was able to achieve what he wanted, not for himself, for what he wanted for all black community. Although it is not good to address them as a black, nigger, these are all slang words, but as we are discussing their struggle between the black and white, so that's why we will use this black word, although we should as ethically address them as Africans, Indians and Americans, as we address to ourselves and to other countries also, they are Africans. So this is a news report especially came on the after the particular event when he took oath as the first black president of Africa. And what it is? Mandela becomes South Africa's first black president. Means before him no black person was able to rule, or they didn't have right to rule or to fight the elections. उससे पहले केवल जो सफेद लोग थे, जो गोरे लोग थे, उन्हीं का शासन चला करता था, जैसे कि हमारे इंडिया पे चला करता था. Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries. 3 centuries means 300 years. As we know कि इंडिया पे अंग्रेजों का शासन 200 साल रहा और अफ्रीका पे 300 साल. Mr. Mandela's African National Congress, ANC. What was the name of his party? ANC, African National Congress.
पार्टी वन 252 ऑफ द 400 सीट्स। उनकी जो पार्टी थी वो 400 सीटों में से 252 वोट्स को उन्होंने सीट्स को जीता था। और ये क्या था, एक क्लियर वोट बैंक था, वोट पावर था, या फिर जो क्लियर बहुमत था इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीकन हिस्ट्री। इससे पहले जो ब्लैक लोग थे उनको राइट्स नहीं थे, लेकिन जब इतने स्ट्रगल के बाद जब राइट्स आए उनके पास, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए। डेमोक्रेटिक इलेक्शन मींस द पब्लिक इज गोइंग टू चूज अ गवर्नमेंट फॉर देमसेल्फ एज वी डू इन इंडिया। इन साउथ अफ्रीकन हिस्ट्री ये पहला इलेक्शन था, और पहले ही इलेक्शन में वो एकदम क्लियर बहुमत से जीते थे। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स। एक यूनियन बिल्डिंग्स के थ्रू एक प्लेस बनाया गया था, वो था एमपी थिएटर इन प्रिटोरिया। कहाँ पे था वो? एमपी थिएटर इन प्रिटोरिया टुडे। अटेंडेड, ये टुडे की बात इसलिए हो रही है क्योंकि ये न्यूज रिपोर्ट है, ये उस दिन की बात कर रहा है। अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज, और उसको अटेंड किस किस ने किया है? पॉलिटिशियंस ने किया है, बहुत सारे डिग्निटरीज यानी जो सम्मानित लोग हैं उन्होंने किया है, फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज। और कहाँ कहाँ से आए हैं वो? 140 कंट्रीज से भी ज्यादा वो लोग आए हैं अराउंड द वर्ल्ड। नेवर एवर अगेन will this beautiful land experience the oppression of one by another। ये नेल्सन मंडेला का एक प्रॉमिस था। सेड मंडेला, नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस, उन्होंने अपनी स्पीच में बोला था कि नेवर एवर, आज के बाद कभी भी, ये जो ब्यूटीफुल लैंड है वो आज के बाद कभी भी इस तरह का ऑपरेशन, मतलब क्या होता है, इस तरह का शोषण कभी भी एक्सपीरियंस नहीं करेगा। उनके कहने का मतलब था कि सभी के लिए इक्वल राइट्स होंगे, चाहे वो स्किन फेयर हो या फिर डार्क हो, किसी में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। Jubilant scenes on the street of Pretoria followed the ceremony with black, white and colored celebrating together। और जो ये सेरेमनी थी, इसको ये सभी लोग बहुत खुश थे, चाहे वो ब्लैक थे, चाहे वो वाइट थे, या कोई और डिफरेंट स्किन कलर के लोग थे। मोर देन 100,000 साउथ अफ्रीकन मैन, women and children of all races sang and danced with joy। 100,000 साउथ अफ्रीकन, चाहे वो गोरे थे, चाहे वो काले थे, चाहे वो औरत थे, बच्चे थे, किसी भी तरह के थे, किसी भी जाति के थे, उन्होंने साथ में इसका उत्सव बनाया, साथ में उन्होंने डांस किया, साथ में उन्होंने खुशियां मनाई। Now students, let's see the explanation of the chapter. As I told you, it is a part of his speech, और ये उनकी स्पीच का एक पार्ट है। मैक्सिमम उन्होंने वही लिखा है अपनी ऑटोबायोग्राफी में, जब उन्होंने स्पीच दिया था उसी सीन को उन्होंने डिस्क्राइब किया है यहाँ पे। सो 10th मई, ये किस दिन की बात है जब उनका सेरेमनी था? इट वॉज अ डे ऑफ 10th मई। dawn मीन्स होता है अर्ली इन द मॉर्निंग बिफोर सनराइज। dawn ब्राइट एंड क्लियर, जो उसकी प्रभात था, यानी उससे पहले का भी जो प्रभात था वो बहुत ही ज्यादा क्लियर था। For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration। So what he is saying that for the past few days, अभी पिछले कुछ दिनों से, I had been pleasantly besieged। besieged means होता है to be surrounded closely by, means उनको जब इस बहुत ही बड़े अवसर पर अलग अलग देशों से लोग आए थे, डिग्निटरीज मतलब सम्मानित लोग आए थे, तो वो उनके पास थे, उनके पास बैठते थे, उठते थे, तो वो सराउंडेड थे इन लोगों से, लीडर्स हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट्स बिफोर द इनॉग्रेशन, क्योंकि इनॉग्रेशन से पहले वो अपनी रिस्पेक्ट पे करने आए थे उनके लिए। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। और जो इनॉग्रेशन था वो सबसे बड़ा एक गैदरिंग था, इससे पहले साउथ अफ्रीका की सॉइल पे इंटरनेशनल लीडर्स की कोई गैदरिंग नहीं हुई थी। मींस यही जो गैदरिंग थी वो सबसे बड़ी गैदरिंग थी साउथ अफ्रीकन सॉइल पे। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union buildings in Pretoria। So this is kind of important where the ceremony took place. Where did the ceremony take place? So here it took place in the sandstone amphitheater
फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स। किसके द्वारा बनाया गया था? यूनियन बिल्डिंग्स के द्वारा बनाया गया था इन प्रेटोरिया। और जगह कौन सी थी? प्रेटोरिया। जो ये सेरेमनी थी वो कहाँ पे हुआ? सैंडस्टोन एम्पी थिएटर में हुआ था, जो कि यूनियन बिल्डिंग्स के द्वारा बनाया गया था, और ये प्रेटोरिया में था। For decades, this had been the seat of the white supremacy. White supremacy means सफेद लोगों का, गोरे लोगों का शासन रहा था। यहाँ पे जो सीट थी, जैसे कि आप हमारा संसद भवन बोल सकते हो, यहाँ पे किसका शासन होता है, कौन हेड होता है, इस तरह से। तो यहाँ वहां पर उस तरह का जो एक स्ट्रक्चर था, वो वहां पे बहुत टाइम से, डिकेड्स, कई दशकों से केवल सफेद लोगों का ही, गोरे लोगों का ही शासन रहा है। And now it was the site of rainbow gathering of different colored and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. आज की जो बात है, एंड नाउ, और आज की बात है, इट वॉज द साइट, ये एक ऐसा दृश्य था ऑफ रेनबो, जैसे कि यहाँ पे सतरंगी अतरंगी गैदरिंग हो रखी थी, क्योंकि अलग अलग देशों से लोग आए हुए थे। गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर, जिनका स्किन टोन अलग अलग था, एंड नेशंस ऑफ द इंस्टॉलेशन, अलग अलग देशों से आए थे। क्यों आए थे? क्योंकि एक नए डेमोक्रेसी का, एक नई गवर्नमेंट का इंस्टॉलेशन होने वाला था, यानी वो अस्तित्व में आने वाली थी, ऑफ साउथ अफ्रीकन फर्स्ट। और किस तरह की गवर्नमेंट थी? डेमोक्रेटिक थी, प्रजातंत्र था वहां पे, और नॉन रेशियल, और ऐसी गवर्नमेंट थी जो किसी भी जाति पाति के ऊपर आधारित नहीं थी। ऑन दैट लवली ऑटम डे, यहाँ पे मई की बात हो रही है, द मंथ इज ऑफ मई, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऑटम की, जबकि हमारे यहाँ अगर हम इंडिया की साइड देखेंगे तो मई जो मंथ होता है वो समर का होता है। लेकिन वाई ही इज कॉलिंग इट as an autumn day? Because it is the difference because of the situation, geographical situation, southern hemisphere और northern hemisphere. So वहां पर अफ्रीका की साइड मई में कौन सा सीजन चलता है? ऑटम। So that on that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zinani. तो मैं उस प्यारे से दिन में, ऑटम के प्यारे से दिन में, मेरे साथ कौन था? मुझे किसने साथ दिया था इस पोडियम तक? माई डॉटर जिनानी, उनकी बेटी जो थी जिनानी, वो उनके साथ थी। ऑन द पोडियम मिस्टर डे क्लर्क वॉज फर्स्ट सॉन इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। जो मिस्टर डे क्लर्क थे उनको एज अ सॉन कराया गया, उनको कसम दिलाई गई, उनको शपथ दिलाई गई। किस तरह से उनकी डेजिग्नेशन क्या थी? एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। उनकी जो पोस्ट थी वो सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट थी। देन थाबो म्बेकी वाज स्वॉर्न इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। जो फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट थे, एज अ फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट थाबो म्बेकी ने ओथ ली, उन्होंने कसम ली। When it was my turn means Nelson Mandela's turn, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of republic and its people. तो मैंने किस चीज की कसम ली थी, यानी नेल्सन मंडेला ने किस चीज की कसम ली थी? कि वो कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसके अकॉर्डिंग उसको ओबे करेंगे, उसको बनाए रखेंगे, और अपने आप को उस कॉन्स्टिट्यूशन के लिए डिवोट करेंगे। और वो किस चीज में डिवोट करेंगे? ऑफ द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक, जिससे गणतंत्र की सही सलामत चलता रहे, उसकी देखभाल हो, सुचारू रूप से चले। टू द असेंबल गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, और जो वहां पे इकट्ठे असेंबल गेस्ट थे, जो वहां इकट्ठे हुए गेस्ट थे, और जो पूरा वर्ल्ड उस दिन देख रहा था, क्योंकि टेलीकास्ट सब जगह हो रहा था। टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर confer glory and hope to newborn liberty. तो आज हम सभी उन सब का, उस न्यूबॉर्न लिबर्टी है जो आज आज़ादी मिली है, हम उसको ग्लोरीफाई करेंगे, हम उसको ग्लोरीफाई करने के लिए हैं यहाँ पे। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, माइंड हियर, ह्यूमन डिजास्टर किसको बोला गया है? ह्यूमन डिजास्टर बोला गया है जो ऑपरेशन हुआ था, जो टॉर्चर हुआ था, जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ था
एक रेस के थ्रू दूसरी रेस पे, उसको ह्यूमन डिजास्टर बोला गया है। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, वो कि लीगल नहीं था, सही नहीं था, क्योंकि किसी भी मानव को किसी भी रंग के असर पे या रंग की वजह से या किसी जाति की वजह से ये नहीं कह सकते हम कि वो ज्यादा ऊंचा है या कोई और तो ज्यादा नीचा है। तो ये एक ह्यूमन डिजास्टर था दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो कि काफी लंबे समय तक चला था, ऑलमोस्ट 300 ईयर्स तक चला था। मस्ट बी born a society of which all humanity will be proud। अब क्या करना है, अब ऐसी सोसाइटी का बर्थ होना था और ऐसी सोसाइटी बनानी थी जिसपे सारी ह्यूमैनिटी जो हो, सारी जो मानवता हो, उसको प्राउड हो, उसको गर्व महसूस हो। We who were outlaws now not so long ago, we who were outlaws, we यहाँ पे बात हो रही है for the black people, उन लोगों के लिए जो कि काले रंग के थे, जिसकी वजह से उनको लॉज, उनके लिए बहुत सारे लॉज नहीं थे, उनको नजरअंदाज कर दिया गया था। who were outlaws not so long ago, ये अभी बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी अभी की बात है। यहाँ पे देखिए, बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिसी ऑफ अपार्थेड, जो ये भेदभाव की नीति थी जिसकी वजह से काले लोगों को अलग रखा जाता था। मैनी कंट्रीज हैड अर्लियर ब्रोकन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद साउथ अफ्रीका। इस नीति की वजह से बहुत सारी कंट्रीज ने साउथ अफ्रीका के साथ रिलेशंस को ब्रेक कर लिया था। Have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil। तो आज हमने क्या किया है, आज हम लोगों ने have today been given, एक ऐसा प्रिविलेज दिया है, एक ऐसा अवसर दिया है to be host the nations, उन सारे nations को होस्ट करने का, उनको बुलाने का, सम्मान करने का, of the world on our soil, हमने अपनी अपनी जमीन पे उनको आमंत्रित किया है। We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory of justice, for peace and for human dignity। उनको क्यों बुलाया गया था, बाहर की कंट्रीज को क्यों बुलाया गया था, क्योंकि उन्होंने उस अपार्थेड की नीति के चलते हुए, उस पॉलिसी के चलते हुए साउथ अफ्रीका से रिलेशन अपने खत्म कर लिए थे। अब उन लोगों ने उन बाकी कंट्रीज को भी, डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, उन लोगों को भी बुलाया है जिससे कि वो वहां आ सके और दोबारा टेक पोजेशन का मतलब ये नहीं कि अफ्रीका के ऊपर पोजेशन लेना, उनका मतलब था कि उनसे दोबारा अच्छे टर्म स्टैब्लिश कर सके। और इस जो ह्यूमैनिटी की विक्ट्री हुई है, उसको ह्यूमन डिग्निटी को बना के रखते हुए जो ये जो विजय हुई है, ये जस्टिस की विजय हुई, ये सभी की विजय है, यानी सबकी विक्ट्री है कि सभी लोग आके दोबारा साउथ अफ्रीका से कांटेक्ट बना पाएंगे, उससे रिलेशन बना पाएंगे। और ये जरूरी भी था, क्योंकि उस टाइम तक अगर किसी भी कंट्री को प्रोग्रेस करना होता है तो उसे अपनी नेबरिंग कंट्री से और दूसरी कंट्री से अच्छे टर्म्स बना के रखने होते हैं, क्योंकि गिव एंड टेक होता है, कभी हमें किसी की नीड होती है, कभी उनको हमारी नीड होती है। अगर हम सबसे अलग रहेंगे, हम अच्छे टर्म बना के नहीं रखेंगे, तो हमें जब उनकी नीड होगी तब हमें उनकी हेल्प नहीं मिलेगी। We have at last achieved our political emancipation। तो अभी क्या था, at last हमें तो हुआ क्या था, we have at last, अंत में आके, अचीव्ड आर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, हमने अपनी जो इमेंसिपेशन, फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन, जो अलग अलग रिस्ट्रिक्शन हमारे ऊपर लगाए गए थे, हमने उनसे विजय ले ली है, हमें वो सारे जो सारी रिस्ट्रिक्शन थे वो हमने हटा दिए हैं। We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। We pledge, हम लोगों ने ये कसम खाई है, ourselves to liberate all, कि हम क्या कराएंगे, अपने सारे लोगों को, अपने सभी लोगों को किस किस चीज से आजाद कराएंगे, फ्रॉम द कंटिन्यूइंग, जो हमारे देश में लगातार जो बंधन चल रहे हैं, किस चीज के, गरीबी के, डिप्राइवेशन के
और सफरिंग्स के लिंग के आधार पे, जेंडर के आधार पे, डिस्क्रिमिनेशन के, मतलब हम इन सारे, केवल आज़ादी नहीं कि केवल गोरे लोगों से हमने आज़ादी ले ली, लेकिन इसके साथ साथ हम बाकी कंट्रीज से बहुत अच्छे टर्म बनाएंगे और गरीबी से, बंधनों से, या फिर जो हमें डिप्राइव किया गया है उन चीज़ों से, दुखों से, जेंडर के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन से, हम इन सब चीज़ों से अपने लोगों को अलग फ्रीडम दिलाएंगे. नेवर, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. ऐसा नहीं कि एक टाइम पे वाइट लोगों ने हम पे रूल किया, उन्होंने हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, तो अब हम उनके साथ बदला करेंगे या हम उनके साथ वही रिवर्स बिहेवियर करेंगे. ऐसा कभी नहीं होगा. अब इस ब्यूटीफुल लैंड पे यानी साउथ अफ्रीका पे सभी लोग इक्वल होंगे, चाहे वो गोरे होंगे चाहे काले होंगे. कोई भी किसी का वो नहीं करेगा, शोषण नहीं करेगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा या ऑपरेशन नहीं करेगा. द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट. आज का जो सूर्य उदय है वो आज से पहले कभी भी ज्यादा इतना ग्लोरियस नहीं था, क्योंकि इंसानों को इतनी ज्यादा अचीवमेंट कभी मिली ही नहीं थी. मानवता को कभी इतनी ज्यादा अचीवमेंट नहीं मिली. यानी क्या हो गया था, वो फ्री हो गया था. लेट फ्रीडम रिगेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका. सभी फ्री हों और ये फ्रीडम बनी रहे, और भगवान जो हैं वो अफ्रीका को ब्लेस करें और इसको प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेके जाएं, इसको तरक्की की तरफ लेके जाएं. A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets. ये सारा शपथ समारोह हुआ, उसके बाद सेलिब्रेशन स्टार्ट होता है. तो उसके बाद सभी ने अपनी जो नजरें थी वो आकाश की तरफ उठाई, आसमान की तरफ उठाई, आश्चर्यचकित होके. ये मतलब आश्चर्यचकित होके एज अ स्पेक्टेटर, एज अ दर्शक बने. वो किस चीज के दर्शक बने थे? एरी ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट मीन्स एन इम्प्रेसिव डिस्प्ले, कलरफुल अट्रैक्शन. आसमान में जो अफ्रीकन जेट्स थे और हेलीकॉप्टर्स थे, ट्रॉप्स, carriers roar in perfect formation over the Union buildings. यानी जो अफ्रीकन फोर्स है, अफ्रीकन जेट्स थे, हेलीकॉप्टर्स थे, वो सेलिब्रेशन करने के लिए क्या कर रहे थे? सेलिब्रेशन को और अच्छा बनाने के लिए और उसको एक अलग ही लेवल पे ले जाने के लिए वो आसमान में जेट्स के थ्रू, हेलीकॉप्टर्स के थ्रू फॉर्मेशंस बना रहे थे. जैसे कि हमारे यहाँ पे होता है, हम लोग जब नेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं तो एयरफोर्स के थ्रू आसमान में हमारे फ्लैग का कलर होता है और फिर उसका स्टंट्स भी होते हैं. इसी तरह से वहां पर भी सेम जो प्रेजेंटेशन थी दी जा रही थी. इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy. ये केवल क्या नहीं था, ये ऐसा नहीं था कि एक मिलिट्री फोर्स की तरफ से एक प्रोसेशन था या फिर उनका एक एक प्रदर्शन था. ये क्या था? ये वो दिखा रहा था, ये उनका डेमोन्स्ट्रेशन था कि वो आगे आने वाली डेमोक्रेसी के लिए कितने लॉयल हैं. यानी जो मिलिट्री है वो भी डेमोक्रेसी के लिए लॉयल रहेगी. टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड. एक ऐसी गवर्नमेंट जो कि बहुत फ्रीली और फेयरली इलेक्ट हुई है. Only moments before, the highest general of the South African Defence Force and Police, their chest bedecked with ribbons and medals from days gone by, salute me and pledged their loyalty. यहाँ पे थोड़ा सा समझिए. Only मोमेंट्स बिफोर, कुछ ही क्षण पहले जब एज अ नेल्सन मंडेला ने एज अ प्रेसिडेंट अपनी ओथ ली, तो उसी क्षण के बाद जो ये हाईएस्ट जर्नल थे साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स के, पुलिस फोर्स के, और जिनके चेस्ट पे अलग अलग उनकी रैंक के हिसाब से रिबन्स लगे हुए थे, द मेडल्स भी थे, एंड फ्रॉम डेज गॉन बाय सल्यूटेड मी एंड प्लेज्ड देयर लॉयल्टी. उन्होंने मेरे लिए यानी एज अ प्रेसिडेंट के प्रति अपनी निष्ठा के लिए उन्होंने भी लॉयल्टी की ओथ ली. आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल. यहाँ पे अनमाइंडफुल होता है नॉट फॉरगेट. मैं भूलूंगा नहीं, मैं एकदम नहीं भूल जाऊंगा ऑफ द फैक्ट दैट
यहाँ पे कोई रिवेंज वाली फीलिंग नहीं है, लेकिन उनको अपना पास्ट याद आ रहा है। तो आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ ऑफ द फैक्ट दैट not so many years before they would not have saluted but arrested me. आज से कुछ ही टाइम पहले की बात है, ये लोग मुझे सल्यूट नहीं कर रहे थे, ये लोग मुझे अरेस्ट कर रहे थे, क्योंकि वहां पर नेल्सन मंडेला गवर्नमेंट के अगेंस्ट थे। एक्चुअली जो ये एयरफोर्स थे, ये किसके प्रति लॉयल होते हैं? ये गवर्नमेंट के प्रति लॉयल होते हैं। उस टाइम नेल्सन मंडेला एज अ रिवॉल्यूशनरी थे और एज अ प्रोटेस्ट कर रहे थे गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अगेंस्ट, इसीलिए ये सब लोग उनको क्या कर रहे थे? उनको अरेस्ट कर रहे थे। फाइनली chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. Chevron क्या होता है कि a pattern in the shape of V, जो एयरप्लेन्स थे ये फाइनली शेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स, जो इम्पाला जेट्स थे वो आसमान में इस तरह की फॉर्मेशन बना के चलते हैं। लाइक सबसे पहला जेट यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे और चौथा, इस तरह की फॉर्मेशन बना के ये मूव करते हैं आसमान में। और पीछे क्या छोड़ते हैं? ये इन फ्लैग का कलर छोड़ते हैं। जैसे कि हम लोग 15 अगस्त और 26 जनवरी को देखते हैं, ट्राई कलर आसमान में छोड़ा जाता है। इसी तरह से ये अफ्रीकन साउथ अफ्रीकन फ्लैग के जो कलर्स थे वो आसमान में छोड़ रहे थे। ठीक है। द डे वॉज सिंबलाइज्ड for me by the playing of our two national anthems. और जो ये था द डे वॉज सिंबलाइज्ड फॉर मी, ये एक डे ऐसा सिंबल बना, इस दिन पे दो नेशनल जो एंथम्स थे वो प्ले हुए थे। एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग, एक जो वाइट सिंगिंग था, जो वाइट सिंगिंग था, कोसी सेकली आई अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टैम। दो जो उनके नेशनल एंथम थे, वाइट के लिए अलग और ब्लैक्स के लिए अलग, वो दोनों ही नेशनल एंथम गाए गए। एंड ओल्ड एंथम ऑफ रिपब्लिक, ये जो ब्लैक वाला था वो पुराना था, इसको भी गाया गया। ऑल दो दैट डे नीदर group knew the lyrics of the anthem they once despite, they would soon know the word by heart. अब क्या था कि ये जो नेशनल एंथम दोनों गाए गए थे, वर्ड बाय वर्ड उनके एज सच उनको नहीं पता थे मीनिंग, दैट डे नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम, उनको उन एंथम के लिरिक्स नहीं पता थे। दे वंस डिस्पाइट, दे वुड सून नो द वर्ड बाय हार्ट। अब वो उन वर्ड्स को दिल से गाने वाले थे, क्योंकि वो किसको रिप्रेजेंट करने वाले थे? वो अफ्रीका को रिप्रेजेंट करने वाले थे। On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. Overwhelmed means आत्म विभोर हो जाना, अंदर से बहुत ही ज्यादा खुश हो जाना, एक भाव विभोर हो जाना, विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। जब उन्होंने अपनी पुरानी हिस्ट्री के बारे में सोचा, तो वो जब इनॉग्रेशन के दिन सारी हिस्ट्री पुरानी अपनी ब्लैक स्ट्रगल हिस्ट्री को सोच रहे थे, तो वो अंदर से बहुत ही ज्यादा भावुक हो गए थे। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th century, इन द फर्स्ट डिकेड्स, इन द डिकेड्स मतलब 10 ईयर का जो साल होता है, पहला जो 20th सेंचुरी का पहले का 10 साल जो थे, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वॉर एंड बिफोर माई ओन birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of social domination against the dark-skinned people of on their own land. तो वो क्या बोल रहे हैं? ये कुछ टाइम पहले ही की ही बात थी कि जब ये कुछ टाइम पहले की ही बात है जब इन द फर्स्ट डिकेड 20th सेंचुरी स्टार्ट ही हुई थी, और जब उसका शुरुआती 10 साल चल रहे थे, अ फ्यू इयर्स आफ्टर, कुछ समय बाद उसके, जब द बिटर एंग्लो बोर वॉर हुआ था, जब एंग्लो वॉर हुआ था, बिफोर माई ओन बर्थ, मेरे जन्म से कुछ साल पहले, द वाइट स्किन पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस, जो वाइट साउथ अफ्रीका के जो गोरे लोग थे, उन्होंने अपने कुछ डिफरेंसेस बना लिए थे, उनके मन में कुछ डिफरेंसेस चल रहे थे ब्लैक लोगों के प्रति, एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेंस, और उन्होंने उसी बेस पे एक सिस्टम बना लिया था। उन्होंने
डोमिनेशन का, काले लोगों के प्रति उन्होंने एक डोमिनेट करने का एक सिस्टम बना लिया था। ऑन और वो भी किसकी लैंड पे, जो ब्लैक लोग थे उनकी खुद की जमीन पे, किसी और की जमीन पे नहीं, कि उनकी खुद की जमीन पे उन्हीं के खिलाफ एक सिस्टम बना लिया गया था। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known। और जो स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया था, जो उन्होंने क्रिएट किया था, वो बहुत ही ज्यादा हार्श था, मोस्ट इनह्यूमन था। क्योंकि उस टाइम पे जो वाइट लोग थे वो ब्लैक लोगों को एज अ सर्वेंट, एज अ स्लेव ट्रीट किया करते थे, उनको बहुत सारे राइट्स नहीं थे। सोसाइटीज द वर्ल्ड एज हैज एवर नोन, और पूरी दुनिया ने शायद ऐसा सिस्टम कभी विटनेस नहीं किया होगा। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, और जब 20th सेंचुरीज के लास्ट डिकेड, कुछ 10 और 20 साल थे, माई ओन 8 डिकेड्स एज अ मैन, that system had been overturned forever and replaced by a, और मेरे खुद के जो जीवन के जो साल चल रहे थे उसमें ही उनका जो ये सिस्टम था वो ओवरटर्न हो गया था, वो खत्म हो गया था, एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल। अब उसकी जगह पे एक ऐसा सिस्टम आया था जिन्होंने सभी लोगों के राइट्स को रिगार्ड किया था, पहचाना था, और ना कि ये देखते हुए कि किस इंसान का कलर क्या है। मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जो वाइट लोगों ने अपना एक सिस्टम क्रिएट किया था वो उन्होंने रेस के बेस पे किया था, काले और गोरे के भेद पे किया था। काले लोगों के प्रति उन्होंने इतनी घृणा ले ली थी अपने मन में कि उन्होंने सोसाइटी का एक सिस्टम ही अलग कर दिया, बहुत सारे रूल ब्लैक लोगों के लिए खत्म कर दिए थे, उनको बहुत सारी फैसिलिटीज खत्म कर दी थी। लेकिन अब जो ये जो ओवरटर्न हुआ था गवर्नमेंट का, यहाँ पर हर किसी के लिए, हर किसी के राइट्स के लिए इक्वल प्लेस था, और किसी के स्किन टोन को देख के कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। दैट डे हैड कम about through the unimaginable sacrifice of thousands of my people की बात जो हो रही है यहाँ पे, ब्लैक स्किन लोगों की बात हो रही है, कि ये जो दिन आज आया है, उस क्यों आया है, कैसे आया है, ये उतने सेक्रीफाइस के बाद आया है जो मेरे लोगों ने, यानी ब्लैक लोगों के बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड्स ब्लैक लोगों ने अपना सेक्रीफाइस दिया है ये फ्रीडम पाने के लिए। पीपल whose suffering and courage can never be counted और रिपेड, और उन लोगों के बलिदान की वजह से आया है जिनका साहस और उनका जो, उनका साहस और उनके दुख, उन्होंने जो यातनाएं झेली हैं, ना तो हम उनकी यातनाओं को कभी काउंट कर सकते हैं और ना ही हम उनकी यातनाओं और करेज को कभी किसी भी तरह से पे कर सकते हैं। आई फेल्ट दैट डे, उस दिन मुझे ये महसूस हुआ, एज आई हैव on so many others day, that I was simply the sum of all those African patriots। तो आज जो मैं हूँ, यानी मेरे थ्रू जो आज़ादी या प्रेसिडेंट में बना हूँ, लेकिन मैं भी क्या हूँ, ये मेरे अकेले का प्रयास नहीं है, ये उन सब के प्रयासों का, करेज का सम है। आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स। मैं जो आज मंडेला खड़ा हूँ यहाँ पे एज अ प्रेसिडेंट, वो उन सबको मिला के बना हूँ। who had gone before me, जो मुझसे पहले अपना बलिदान दे चुके हैं। that long and noble line ended and now begin again with me। तो वो जो पैट्रियट्स की लाइन है, पैट्रियट्स की, वो मुझ पे आके खत्म हो जाती है, क्योंकि आज के बाद स्ट्रगल तो होगा नहीं, ब्लैक लोग फ्रीडम के लिए स्ट्रगल नहीं करेंगे, लेकिन मुझ पे आके वो लाइन खत्म होती है, लेकिन मुझी से एक नई लाइन शुरू होती है जो कि इस अफ्रीका को और ह्यूमंस को, राइट्स को आगे लेके जाएगा। आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू thank them and that they were not able to see what their sacrifices has brought। मुझे बहुत दुख हुआ ये सोच के कि आज वो लोग हमारे बीच में नहीं है, मैं उन्हें थैंक यू नहीं कर सकता, और ना ही वो लोग हमारे बीच में हैं जिससे कि वो ये देख पाए कि उनके सेक्रीफाइसेस ने, उनके बलिदानों ने आज क्या लेके आ पाए हैं, उनके बलिदान के थ्रू हमने क्या अचीव किया है, हमें क्या मिला है। द पॉलिसी ऑफ अपार्थेड, जो ये अपार्थेड की पॉलिसी थी, क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वूंड इन माय कंट्री एंड माय पीपल।
ये जो नीति थी, भेदभाव की नीति थी, इसने मेरे देश पे और मेरे देश के लोगों पे एक ऐसा घाव, वूंड मतलब घाव डाला था, घाव दिया था, जो कि बहुत ही ज्यादा लंबे समय तक रहने वाला था और बहुत ही ज्यादा डीप था। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स, हम सभी, अभी बहुत सारे हमें समय लगेगा, इफ नॉट जनरेशंस, अगर ये कहें कि कोई कुछ जनरेशंस लगेंगी, रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, हमें अभी कई पीढ़ियां लग जाएंगी इस चीज से बाहर निकलने में। इस प्रोफाउंड मीन्स डीप एंड स्ट्रॉन्ग, इस जो हमें हर चोट पहुंची है, बहुत ही गहरी जो चोट पहुंची है, इससे हमें बाहर निकलने में अभी बहुत पीढ़ियां लग जाएंगी। But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, that was that it produced the Oliver Thambos, the Walter Sislus, the Chief Luthulus, the Yusuf Dados, the Bram Fishers, the Robert Sobuquets of our time, men of extraordinary। तो वो क्या बोल रहे हैं कि इस नीति ने, अपार्थेड की जो नीति थी, उसने हमें बहुत घाव तो दिए ही हैं, जो कि हम बहुत आगे आने वाली पीढ़ी तक याद रखने वाले हैं। इतनी जल्दी उनको आसाना भूलना आसान नहीं होता। आज अगर हम अपनी बात करें, इंडिया को फ्रीडम लिए हुए कितने साल हो गए, लेकिन आज भी हम, जो ब्रिटिशर्स के थ्रू हमारे ऊपर टॉर्चर किए गए थे हमारे फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर, वो हमें आज भी याद है। तो इन लोगों को भी जनरेशन्स लग जाएंगी वो सब भूलने के लिए, लेकिन फिर भी कुछ डिकेड्स, कुछ दशक लगे थे जब इस तरह का ऑपरेशन हो रहा था, इस तरह का उनके ऊपर अत्याचार हो रहा था, ब्रुटैलिटी बहुत ही ज्यादा उनके ऊपर निर्मम अत्याचार हो रहे थे, ब्रूटल उनका बिहेवियर था, उसका एक अनइंटेंटेड, हालांकि वो ऐसा, वाइट लोग ऐसा चाहते नहीं थे, उनकी इंटेंशन नहीं थी, लेकिन उसका एक और इफेक्ट हुआ था। इफेक्ट क्या हुआ था? इसी के चलते, इसी नीति के चलते उसने कुछ लोगों को एज अ लीडर बना के निकाला, उनको लीडरशिप क्वालिटी दी, ऐसे ऐसे लोगों को प्रोड्यूस किया, जस्ट लाइक ओलिवर थाम्बोस, द वॉल्टर सिस्लूस, द चीफ लुथलिस, यूसुफ दादोस, द ब्राम फिशर्स, द रॉबर्ट सुबुक्वेज। ऑल्दो हम प्रॉपर नाउन से पहले द कभी नहीं लगाते, लेकिन हम यहाँ पे इसलिए लगा रहे हैं बिकॉज ये यूनिक हैं, ये लीडर्स हैं, इसीलिए द का यूज हुआ है, और इनके जैसा अब दूसरा कोई आने वाला है नहीं। मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये जो लोग थे वो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीज थे। यू कैन सी द पिक्चर्स ऑफ दीज अफ्रीकन हीरोज हेयर। The man of such extraordinary courage, wisdom, generosity, and their like many never be known again। उनके अंदर साहस था, उनके अंदर बुद्धि थी, जेनरसिटी थी, दया थी, और that their like may never be known again, और उनके जैसे शायद लीडर अब कभी पैदा ही ना हो। Perhaps it requires such depth of operation to create such a height of character। और ऐसा भी हो सकता है कि इस तरह के कैरेक्टर्स, इस तरह के लोग बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा संघर्ष चाहिए होता है। तभी कोई लीडर निकल के आता है, जब बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन होती है, तभी कोई लीडर बनता है। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स एंड लाई बीनीथ इट्स सॉइल, बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamond। मेरा जो देश है, यानी जो अफ्रीका है, या मेरे देश की बात, नेल्सन मंडेला अपने देश की बात कर रहे हैं, अफ्रीका की, वो मिनरल्स में बहुत रिच है। यहाँ पे जेम्स निकलते हैं, अगर सॉइल के नीचे खुदाई की जाती है तो मिनरल्स निकलते हैं, जेम्स निकलते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ की जो मिट्टी है वो एक तरह से रिच और है, क्योंकि इसकी ग्रेटेस्ट वेल्थ क्या है? यहाँ के लोग हैं, जो कि बहुत फाइन है, जो कि बहुत ट्रू है, जो कि किसी डायमंड से भी ज्यादा सच्चे हैं। It is It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage। Comrades means होता है जो fellow soldiers, जो मेरे साथी थे स्ट्रगल में, जो मेरे सोल्जर्स थे फ्रीडम फाइटिंग में, राइट्स के लिए। मैंने उन लोगों से किसका मीनिंग सीखा था? मैंने उन लोगों से करेज का मीनिंग सीखा था। टाइम एंड अगेन I have seen men and women risk and give their lives for an idea। समय के साथ बार बार मैंने
औरतों को, आदमियों को अपने जीवन को रिस्क में डालते हुए एक आइडिया के लिए, क्या आइडिया था? फ्रीडम, लिबर्टी, डेमोक्रेसी। इसके लिए मैंने इस आइडिया को लेके मैंने उनको अपनी लाइफ को बार बार रिस्क में डालते हुए देखा था। I have seen men stand up to attack and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. और I have seen men, मैंने उन लोगों को देखा, उन आदमियों को देखा जो अटैक के लिए खड़े हुए थे, जो टॉर्चर को सहन कर रहे थे विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे, शोइंग अ स्ट्रेंथ, और अपनी मन की स्ट्रेंथ को दिखा रहे थे, एंड रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। रेजिलियंस मीन्स द एबिलिटी ऑफ डील विद एनी काइंड ऑफ हार्डशिप एंड रिकवर फ्रॉम इट्स इफेक्ट, जो कि किसी भी हार्डशिप से डील करने को तैयार थे, उससे बहुत जल्दी रिकवर भी हो रहे थे, और जो कि दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, जो कि हमारी कल्पना से बहुत परे है। I have learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. मैंने इस चीज से क्या सीखा? Look at this line. Courage was not the absence of fear, but the triumph over it. It's an important line, students. कि जो करेज है, साहस है, साहस का मतलब ये नहीं होता कि आप डरते ही नहीं हो किसी चीज से। साहस का मतलब होता है डरना जरूरी है, डरो, लेकिन हमें उसके ऊपर जीत कैसे प्राप्त करनी है, वो ही हमारा साहस होता है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। साहसी, बहादुर व्यक्ति वो नहीं है जो डरता ही नहीं है, बट ही हु क्वेंकर्स दैट फियर। साहसी व्यक्ति तो वो बहादुर वो कहलाता है जो अपने डर को जीतता है। No one is born hating another people because of the color of the skin. कोई भी इस दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो कि घृणा के साथ पैदा होते ही किसी इंसान से नफरत करता है उसके स्किन के कलर के बेस पे, और हिज बैकग्राउंड, या फिर उसके बैकग्राउंड से कि वो किस स्टेटस से आता है, और हिज रिलीजन की, ना कि उसके धर्म से। पीपल मस्ट लर्न टू हेट। अगर लोगों को नफरत करनी है तो उन्हें वो सीखनी पड़ेगी। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, और अगर वो नफरत करना सीख सकते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव। उन्हीं लोगों को प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट, बिकॉज जो प्यार है वो हमारा पहला इमोशन होता है जब हम किसी इंसान के लिए लेके आते हैं, यानी बच्चा होता है अपनी माँ के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए वो पहला इमोशन लेके आता है जो कि प्यार है। तो जो प्यार वाला इमोशन है वो नेचुरली हमारे हार्ट में आ जाता है। देन इट्स अपोजिट, उसके बाद हमें नफरत करना आता है, यानी पहला इमोशन क्या होता है? प्यार। इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम इन प्रिजन, बुरे से बुरे टाइम में जब वो प्रिजन में थे, व्हेन माई कॉमरेड, जब मेरे साथी एंड आई वर पुश टू आर लिमिट्स, जब हमें टॉर्चर किया जाता था हमारी लिमिट्स तक, आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स। तो मुझे कभी कभी किसी गार्ड की आंखों में दया की वो झलक देखने को मिलती थी। परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, ज्यादा नहीं, चाहे वो 1 सेकंड के लिए आती थी, लेकिन फिर भी आती थी। बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग, और वो एक झलक मेरे लिए काफी थी मेरे स्ट्रगल को कंटिन्यू रखने की, और उस उम्मीद को कंटिन्यू रखने की कि शायद एक ना एक दिन इनके मन में भी प्यार पैदा हो पाएगा। मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम, जो इंसान की अच्छाई होती है वो एक फ्लेम की तरह होती है, एक ज्योति की तरह होती है, दैट कैन बी हिडन, वो छुप सकती है, बट कैन नेवर बी एक्सटिंग्विश, वो कभी बुझती नहीं है। इंसान चाहे कितना भी बुरा अपने आप को दिखाने की कोशिश करे, पर वो सूनर और लेटर उसकी अच्छाई कभी ना कभी किसी काम में दिखाई दे जाती है। इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस, 2 तरह की उसके उत्तरदायित्व होते हैं, हर इंसान के 2 तरह के उत्तरदायित्व होते हैं। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, पहला उत्तरदायित्व उसके परिवार की तरफ, टू हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स की तरफ, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, उसके मतलब परिवार की तरफ, उसके पत्नी की तरफ, उसके बच्चों की तरफ। एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। और दूसरा जो ऑब्लिगेशन होता है, उसका दूसरा उत्तरदायित्व होता है अपने देश के प्रति, समाज के प्रति और उसके लोगों के प्रति। In a civil and humanic society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclination. और इस ह्यूमनिक सोसाइटी में हर इंसान अपनी इंक्लिनेशन, अपनी यानी आप जिस तरह के उनका क्या बिहेवियर है, वो किस ऑब्लिगेशन को इम्पोर्टेंस देते हैं, और उनकी खुद की जो एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग वो अपने अपने उत्तरदायित्व
दायित्व को निभाते हैं। कोई फैमिली को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है तो फैमिली को प्रायोरिटी पे रखता है, नेशन के लिए भी करता है लेकिन फैमिली को ज़्यादा करता है। लेकिन कुछ लोग घर बार छोड़ के केवल नेशन के लिए करते हैं। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में इट वॉज utmost impossible, almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of these obligation। लेकिन साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ये बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल था फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ, जिसने मेरी जाति में जन्म लिया था, मेरे कलर में जन्म लिया था, उसके लिए दोनों तरह के ऑब्लिगेशंस को एक साथ पूरा करना बहुत ही मुश्किल था। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग was punished and isolated। साउथ अफ्रीका में मेरे कलर के जिस इंसान ने एक इंसान की तरह रहने की कोशिश की, मतलब उनको एज अ एनिमल ट्रीट किया जाता था, उनके साथ जो व्यवहार था वो अच्छा नहीं था। जो कोई भी अपने ह्यूमन राइट्स के लिए वो डिमांड करता था या फिर रिवोल्ट करता था, उसे पनिशमेंट में आइसोलेटेड कर दिया जाता था, जेल में डाल दिया जाता था। In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion। तो ऐसे लोग जो कि अपनी कंट्री के लिए भी अपने उत्तरदायित्व पूरा करना चाहते थे, ऐसे लोगों को उनकी फैमिली से छीन लिया जा, उनको अलग होना पड़ता था, या तो उनको सीक्रेटली अपने एक्शन करने पड़ते थे या फिर उनको जेल में डाल दिया जाता था, क्योंकि वो क्या कहलाते थे, रिबेलियन कहलाते थे, विद्रोही कहलाते थे। तो उनको अपने एक्शन सीक्रेसी में करने पड़ते थे, एकांत में, यानी सीक्रेटली अपने एक्शंस करने पड़ते थे, कहाँ कैसे क्या है। I did not in the beginning choose to place my people above my family। तो खुद ही बोलते हैं मंडेला कि स्टार्टिंग में मैंने भी अपने लोगों को अपनी फैमिली से ऊपर चूज नहीं किया था, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज अ सन, अ ब्रदर, अ फादर एंड अ हस्बैंड। लेकिन जब मैं अपने लोगों को सर्व करने गया, जब मैं अपनी कंट्री को सर्व करने गया, तो मैंने ऑटोमेटिकली पाया कि मैं अपने जो एज अ ऑब्लिगेशन ऑफ सन है, फादर है, हस्बैंड है, उनसे मैं प्रिवेंट हो गया हूँ, मैं उनको पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। आई वॉज नॉट बॉर्न विद हंगर टू बी फ्री। मैं जब पैदा हुआ था तो मुझे आज़ादी की कोई ऐसी भूख नहीं थी या मुझे उसका कोई डिमांड नहीं थी। आई वॉज बॉर्न फ्री, क्योंकि मैं तो फ्री ही पैदा हुआ था। फ्री इन एवरी वे, हर तरह से फ्री था। दैट आई कुड नो, जितना मुझे पता था। एक बच्चे को जितना पता होता है फ्रीडम क्या है, वो उनको पूरी पता थी। फ्री टू रन इन द फील्ड, क्योंकि वो मैदानों में दौड़ने के लिए फ्री थे। नियर माई मदर्स हट, मैं अपनी माँ की झोपड़ी के आसपास घूमता था। फ्री टू स्विम, मैं आराम से स्विमिंग करता था इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रन थ्रू माई विलेज, जो मेरे गाँव के पास से होके जाती थी उस नदी में। फ्री टू रोस्ट मीलीज, मैं आराम से रात को तारों की छांव में हम लोग क्या करते थे, अपना खाना पकाते थे। एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और जो आराम से धीरे धीरे चलने वाले बैल हैं, मैं उनके पीठ पे आराम से सवारी करता था। एक बच्चे के लिए इतनी ही फ्रीडम होती है। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबेडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, जब तक कि मैं अपने पिता की बातें मानता रहा, और अबेडेड बाय माई कस्टम ऑफ ट्राइब, जब तक मैं अपनी ट्राइब के जो कस्टम है उनकी आज्ञा का पालन करता रहा। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉ ऑफ मैन और गॉड, तब तक ना तो मुझे किसी इंसान के द्वारा बनाए गए लॉ की कोई चिंता थी और ना ही किसी भगवान के बनाए हुए लॉ की कोई भी चिंता थी। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it। यहाँ पे नेल्सन मंडेला क्या बोलते हैं? इट वॉज ओनली वेन आई बिगिन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन। इल्यूजन होता है मतलब भ्रम, नॉट रियल। कि जो जब मैं लड़का था और जो मुझे आज़ादी थी झोपड़ियों के पास घूमने की, नदियों के पास घूमने की, वो क्या था? वो केवल एक भ्रम था। वेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन, जब मैं एक यंग मैन बना और तब मुझे पता लगा कि जो मेरी आज़ादी है वो ऑलरेडी मुझसे छीन ली गई है। And I begin to hunger for it। Hunger for it means like I really wanted to have it। मुझे just like उसकी मुझे desire होने लगी। At first as
a student, I wanted freedom only for myself, the transitory freedoms of being able to stay out at night and what I pleased एंड गो वेयर। तो पहले पहले मुझे ऐसा लगने लगा था केवल जब मैं स्टूडेंट हूँ तो मुझे मेरे लिए फ्रीडम चाहिए, मेरे लिए फ्रीडम चाहिए कि मैं एबल टू स्टे आउट एट नाइट, में रात में बाहर रह पाऊँ, रीड व्हाट आई प्लीज, जो मैं वो पढ़ पाऊँ जो मुझे अच्छा लगे, एंड गो वेयर आई चोज, जहाँ मुझे जाना हो मैं वहां जा पाऊँ। लेटर एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग आई यार्न for the basic and honorable freedom of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family। जब मैं एक यंग मैन बना जोहानसबर्ग में, आई यान, मुझे बहुत ही तीव्र इच्छा होने लगी। यान मीन्स हैव अ डिजायर, स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम। जो बेसिक किसी की फ्रीडम होती है, मुझे वो सम्मान वाली आज़ादी चाहिए थी। फॉर अचीविंग माई पोटेंशियल, कि जो मेरे अंदर क्षमता है मैं वो चीज़ हक से पा सकूं। ऑफ अर्निंग, जैसे कि मैं अपनी कमाई रख सकूं, एंड मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, मैं मन चाहे उससे शादी कर सकूं और फैमिली रख सकूं। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, जो मेरी जो मेरी आजादी है वो ऑब्स्ट्रक्टेड नहीं हो इन अ लॉफुल लाइफ में, एक नियम कानून से मेरी लाइफ घिरी नहीं हो। ऑब्स्ट्रक्टेड मीन्स बाधित ना हो। बट व्हेन आई स्लोली सॉ दैट not only was I not free, but my brothers and sisters were not free। तो जब मैंने लेकिन ये देखा कि केवल मैं ही ऐसा नहीं हूं जिसके पास आजादी नहीं है, मेरे ब्रदर्स और सिस्टर्स के पास भी आजादी नहीं है, saw that it was not just my freedom that was curtailed। मेरी ही आजादी को छीन लिया नहीं गया था, उसको घटा नहीं दी, इन मेरे राइट्स कम नहीं कर दिए गए थे, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड, जो मेरी तरह दिखता था, मीन्स जो कि डार्क स्किन टोन पर्सन था, उसकी भी आजादी के दायरे सीमित कर दिए गए थे। दैट इज व्हेन आई जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और तब उस समय मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को चूज किया। एंड that is when the hunger of my own freedom became the greater hunger for the freedom of my life। तब पहले मेरे अंदर अकेले खुद की आजादी के लिए, खुद के राइट्स के लिए भूख थी, लेकिन उसके बाद वो ट्रांसफॉर्म हो गई उस हंगर में जिसमें सभी के राइट्स और फ्रीडम थे। It was this desire for the freedom of my people to live their life with dignity and self-respect that animated my life। और जब इट वॉज दिस डिजायर, ये डिजायर कि जब मैं अपने जाति के लोगों की आजादी भी डिजायर करने लगा फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइफ, द डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, जब मैं ये उम्मीद करने लगा कि उनके पास भी आजादी हो, वो सम्मान के साथ और स्वाभिमान के साथ जी सकें, तो मेरी खुद की लाइफ मेरे आगे बहुत छोटी सी चीज रह गई। दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन। और इसी इच्छा ने कि मैं अपने लोगों के लिए आजादी और राइट्स ला पाऊं, जो मेरी खुद की मेरे अंदर जो एक डरा सा सहमा सा इंसान था, उसको उसने एक बोल्ड आदमी बना दिया था। दैट ब्रेव अ लॉ अबेडिंग अटॉर्नी टू बिकेम अ क्रिमिनल, एक कानून को मानने वाला इंसान जो किसमें चेंज हो गया था, एक क्रिमिनल। क्रिमिनल मींस क्रिमिनल कौन था उस टाइम पे जो कि वाइट रूल्स को ना माने, वो क्रिमिनल। दैट टर्न अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम, एक वो इंसान जो कि अपने फैमिली से प्यार करता था, उसको उन्होंने एक ऐसा आदमी बना दिया जिसका कोई घर नहीं था। इसका मीन्स वो अपने घर को टाइम नहीं दे पाते थे। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क, और जो एक फैमिली वाले इंसान को इस इच्छा ने कि मैं अपने देशवासियों के लिए कुछ कर पाऊं, मैं उनकी आजादी भी ला पाऊं, आत्मसम्मान ला पाऊं, मैंने मेरे पर्सनल जितनी भी चीजें थी, मेरी पर्सनल जितनी भी प्लेजर थे अपनी फैमिली के लिए, उन सबको मैंने पीछे हटा दिया। दैट फोर्स्ड और मैं एक जीता जागता कैसे हो गया, लिविंग लाइक अ मॉन्क, और मैं मंक की तरह, एक सन्यासी की तरह जीने लगा। I am no more virtuous or self sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free.
यहाँ पर नेल्सन मंडेला क्या बोल रहे हैं? आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन इंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम। कि जब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मेरे खुद के लोगों के प्रति, मेरे खुद के लोगों के पास उतनी आजादी नहीं है, या जो भी सरकमस्टेंसेस है, तो मैं खुद की जो आजादी थी उसको क्या नहीं कर पाया, मैं उसको इंजॉय नहीं कर पाया, उस लिमिटेड फ्रीडम को। और वो जो मेरे उस पुअर जो थे, इवन इंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड, जो पुअर थी मतलब खराब क्वालिटी की, कम उनको आजादी दी गई थी। आई वॉज अलाउड वेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। और कुछ रीजंस की वजह से एजुकेटेड थे, वो एक अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, एक रॉयल बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, तो उनके ऊपर रूल कुछ कम थे, उनके ऊपर कुछ रूल कम थे, लेकिन फिर भी वो उस चीज को टॉलरेट नहीं कर पाए कि मुझे तो कुछ रूल में कंसेशंस दिया जा रहा है, ठीक है ना, कुछ रिस्ट्रिक्शंस कम की जा रही हैं, लेकिन मेरे लोगों पे नहीं है, तो मैं उस आजादी को इंजॉय नहीं कर पाया। वर नॉट फ्री। फ्रीडम इज इनडिवाइजिबल। आजादी कैसी होती है? बांटी नहीं जा सकती, उसको कम या घटाया नहीं जा सकता। द चेन्स और ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑफ ऑल ऑफ देम। अगर किसी भी एक मेरे जैसे इंसान के ऊपर, यानी ब्लैक मैन के ऊपर अगर कोई भी रिस्ट्रिक्शन थी, तो इसका मतलब यही था कि हम सभी के ऊपर वो रिस्ट्रिक्शंस हैं। द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी। और जो सारी चेन्स मेरे आदमियों के ऊपर थी, मेरे मेरे देशवासियों के ऊपर थी, वो मेरे ऊपर भी थी। ऑल्दो मैं एक अलग बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहा था, मैं एक रॉयल बैकग्राउंड से था, तो मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस कुछ कम थे, लेकिन मेरे बाकी लोगों के ऊपर उतने ही रिस्ट्रिक्शंस थे, तो मैं इस आजादी को एंजॉय नहीं कर पाया। आई न्यू दैट द oppressor must be deliberate just as surely as the oppressed. A man who takes away others man's freedom is a prisoner of hatred. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. I am not truly free if I am taking away someone else's freedom just as surely as I am not. अब यहाँ पे मंडेला क्या बोल रहे हैं? I knew that the oppressor must be deliberate just as surely as the oppressed. एक ऐसा इंसान जिसको कि बंदी बनाया गया है, उसकी तरह ही उस इंसान को भी मुक्ति जरूरी है, जो कि दूसरे लोगों को बंदी बनाता है, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाता है। कैसे? वो तो ऑलरेडी फ्री है, वो किस चीज से आजाद होगा? अ मैन हु टेक्स अवे अनदर्स मैन्स फ्रीडम, जो किसी दूसरे की आजादी लेता है, वो असल में एक बंदी है किस चीज का? हेट्रेड का, यानी नफरत का, यानी उसके अंदर नफरत भरी हुई है, इसीलिए वो दूसरों पे उस चीज को थोपता है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस। और वो स्ट्रॉन्ग डिसलाइकिंग, प्रेजुडिस मींस स्ट्रॉन्ग डिसलाइकिंग विदाउट एनी गुड रीजन। आप बस किसी के लिए कोई सोच बना लो, उसके पीछे बंद जाओ, आप उसके कैदी हो। नैरो माइंडेडनेस, आप छोटी सोच के कैदी हो अगर आप ये सब करते हो। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे एनी एल्स फ्रीडम। अगर मैं किसी और की आजादी लेता हूं, तो मैं सच मायनों में फ्री नहीं हूं। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। क्योंकि जब अगर हम किसी ऐसे इंसान की आजादी लेते हैं, तो हम वो मानवता के दायरे में नहीं आता है, उसको मानवता की तरह ट्रीट नहीं किया जाता, और जो इंसान दूसरों की आजादी लेता है उसके अंदर भी मानवता नहीं बचती। तो हम असली मायने में तभी फ्री होंगे हम जब दोनों के अंदर हमारे ह्यूमैनिटी होगी। So students, this was the explanation of the chapter that I hope that it will be helpful to you in understanding this chapter. I hope that you liked our video. Thanks for watching. Don't forget to subscribe our channel NCRT on your tips. Thank you.